Yes. So, guys, any questions from the last lecture? The previous lecture में से कोई question? No, sir. Basically, we were discussing the manufacturing of sulfuric acid through contact process. And in the last portion of the previous lecture, we were discussing the operation of this reactor, uh, termed as four-pass converter. It basically has four beds of catalyst. Catalyst is same in all the bed, which is P2O5, and reaction temperature required here is 425 to 440 degrees C. So in this reactor, we basically convert SO2 into SO3. This reaction by nature is reversible, and if we have poor control on the reactor operation, so that means we will have a lesser amount of required product and major by amount major components will be the reactants. So in order to ensure that the reaction keeps on going in the forward direction, that is SO2 is converted into SO3, and to avoid the decomposition of SO3 back into the SO2 and O2. We usually can use more than one of these options. That is, remove the heat, as the reaction is exothermic. If we do not remove the heat, the reaction temperature of the reactor will increase and it will start the decomposition of SO3. If one of the reactant is an excess reactant, it will ensure the complete consumption of the limiting reactant, which will again confirm the forward direction of the reaction. Keep on removing the product from the reactor. So it will force the reactants to further react and form the main product. If we have gases, then we can increase the pressure on the reactant side, and this high pressure on the reactor side will force the reaction in the forward direction. Or we can use a catalyst, which can give us the same product at somewhat low temperature. So by lowering the reaction temperature, we can also avoid the decomposition of SO3. In contact process, basically we can use one or more than one option from these. This is single, as you can see, single absorption contact. Single absorption means only once uh, SO3 will be removed. So this is the line of SO2 plus O2. So this line, the reactant goes into the reactor where there is the first catalyst bed. In the presence of this catalyst and at the reaction temperature, which is 425 to 440 degrees C, the reactants will react and they will form SO3. After the reaction or during the reaction, the heat will evolve, which will raise the temperature of the reactor. We cannot afford the high temperature in the reactor. That is why we will take out all the species from the reactor after the first bed of the catalyst. We will take out the species from the reactor and we will pass these species through a heat exchanger where we will cool it down, and after cooling it we will reintroduce the reactor species onto the catalyst bed number 2. Right? Again, through this line the reactants will go into the reactor and they will directly interact with the catalyst particles on the first bed.
They will react as a result because it's an exothermic reaction. As a result, heat will evolve, which will raise the temperature of the reactor, and we cannot afford it. So that is why, after the first catalyst bed, we will take out the reactor species and we will cool them down in this heat exchanger, and then we will reintroduce the same species onto the second catalytic bed. So in this way, we will try to avoid the decomposition of SO3. Again, on the second catalyst bed, the reactants will react and they will form SO3. As soon as SO3 is formed, the reactor temperature will again increase, and again we cannot afford the increase in the temperature of the reactor. So in this case, we will introduce air after the second catalytic bed. So air will dilute the system. As a result, the temperature here will reduce. After the induction of air, the chemical species will go on to the third catalytic bed. During reaction, सर हमने यहाँ भी heat हीट will be एक्सचेंजर क्यों removed. नहीं यूज किया? Heat will be removed. Heat will be generated. We need to remove the heat, and to do so, again after third catalytic bed, we introduce again air, which will dilute the system, and as a result, the temperature of the reactor will slow down. So then the species will go on to the bed number 4. Same reaction, again वही products बनेंगे. So after bed number 4 temperature raise होगा, we will remove the species from the reactor, and we will cool down these species in this heat exchanger, which is termed as economizer, and then we will send this cool product stream into the oleum tower through this line, right? So question is कि Hydrochloric exchanger क्यों नहीं use किया? Like I will show you. So after the bed number 1, conversion is 4 in comparison to bed number 2, 3, and 4. So more conversion means more reaction. More reactions means higher amount of heat will be involved. So that means after bed 1, as the conversion is more than on bed 2, 3, and 4, so at this point we will have more heat. After bed 2, conversion is less than the reaction of bed 1. There will be lesser heat. Same is with bed 3 and same is bed 4. So since after bed 1 we have larger amount of heat, so we have to cool this stream down because the heat available is too much, and it cannot be reduced by the introduction of air. क्योंकि बेड 1 के बाद कन्वर्जन ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा कन्वर्जन होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा. ये चीज़ ये शो करती है. तो जितना ज़्यादा रिएक्शन होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी. और तो चूंकि बेड 1 पे कन्वर्जन ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा है, इसलिए हम उसको हीट एक्सचेंजर से कूल करते हैं. बेड 2 और 3 के बाद कन्वर्जन चूंकि कम है, हीट कम है, तो वो इतनी हीट है कि हम उसको एयर की डाइल्यूशन से एडजस्ट कर सकते हैं. इसलिए बेड 2 और 3 के बाद एयर इंट्रोड्यूस करें. एंड बेड 4 के बाद हम उसको कूल करते हैं और बेसिकली प्रोडक्ट के रिमूवल पे फोकस करते हैं. और ऑलियम पावर में बेसिकली हम जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, and this sulfuric acid will react with the SO3 gas and it will form oleum. This reaction will take place in the oleum tower. In economizer, we will reduce the temperature of the product gas. Then in the oleum tower, and through this line, SO3 is introduced, and
On this line, we introduce sulfuric acid. SO3 and sulfuric acid interact and they form oleum. That oleum is removed from the bottom of the oleum tower and it is sent into the oleum section. While the gases which are not absorbed, they are sent into the absorbing tower. Here again we introduce sulfuric acid and sulfuric acid will absorb the remaining amount of the SO3. As a result, we will have again oleum and the gases which are not absorbed, they will leave the system through the cycle. So this is how this whole process works. If you have any question, please ask. Any question? सर ये लास्ट टॉवर में क्या हुआ था इससे एक्सप्लेन करते हैं दोबारा पूछिएगा. सर ये अब्जॉर्बिंग टॉवर ओके, जो गैसेस ऑलियम टावर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो वो ऑलियम टावर को लीक करती हैं. हम उनको एब्जॉर्बिंग टावर में एंटर करवाते हैं, फिर उसी गैस को एब्जॉर्बिंग टावर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. वहां पे भी फिर जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो वो एब्जॉर्बिंग टावर के टॉप से लीक करते हैं. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. Yes? सर क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी, डिस्टॉर्ट हो रही थी, तो फोर्थ बेड के बाद बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आई. ये बात फोर्थ बेड के बाद तो फोर्थ बेड के बाद मैक्सिमम कन्वर्जन अचीव हो गई है. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि फोर्थ बेड के बाद हम अपनी प्रोडक्ट स्ट्रीम को कूल करते हैं इन दिस इकोनोमाइजर, और ऐसे कूल करते हैं कि इसकी हीट को वाटर में ट्रांसफर करते हैं. वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो प्रोडक्ट स्टीम है वो कूल हो जाती है. कोल्ड प्रोडक्ट स्टीम को हम ऑलियम टावर में इस लाइन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और दूसरी तरफ से हम सल्फ्यूरिक एसिड इंट्रोड्यूस करवाते हैं. SO3 गैस जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ऑलियम बनता है. वो ऑलियम टावर के बॉटम से निकलता है और हम उसको डाइल्यूशन सेक्शन में भेज देते हैं. बाकी जो गैसेस एब्जॉर्ब नहीं हो पाती ऑलियम टावर में, उन गैसेस को हम, वो गैसेस ऑलियम टावर के टॉप से निकलती है और उसको हम नेक्स्ट एब्जॉर्बिंग टावर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं. इसमें अगेन हम सल्फ्यूरिक एसिड इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो रिमेनिंग SO3 को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और दोबारा बॉटम से हम उस एसिड को रिमूव करते हैं. फिर जो गैसेस एब्जॉर्ब नहीं हो पाती वो एब्जॉर्बिंग टावर के टॉप से लीव कर देती हैं. क्लियर है? सर Yes? सर एक क्वेश्चन था, ये हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर सर एक क्वेश्चन था, ये हीट एक्सचेंजर और इकोनोमाइजर में क्या फर्क है? दोनों ही हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, मगर हर हीट एक्सचेंजर की जो ऑब्जेक्टिविटी है, समटाइम्स लोग उस ऑब्जेक्टिविटी की बेस पे उनका नाम रख देते हैं. तो इसको इकोनोमाइजर शायद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इससे स्टीम बना रहे हैं. स्टीम जो है वो स्टीम टरबाइन में जाके एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए शायद इसको उन्होंने इकोनोमाइजर कहा होगा. इस वाले हीट एक्सचेंजर में सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही है दो प्रोसेस स्ट्रीम के अंदर में, आप इसलिए इसको उसमें सिर्फ हीट एक्सचेंजर कह दिया. तो ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी टैगिंग है. टैगिंग के लिए अपनी अपनी लॉजिक है, प्रोसेस की अपनी डिटेल है.
कोई और क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, हमने कल थर्ड बेड के बाद SO3 को सेपरेट किया था, इधर हमने नहीं किया। जी, क्योंकि ये मैंने बताया इट इज ए सिंगल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यहाँ पे हम 2 दफा एब्जॉर्बर में भेज रहे हैं, तो ये ड्यूल एब्जॉर्प्शन है और उसकी फ्लोशीट ये है। ठीक है, तो ये जो ड्यूल एब्जॉर्प्शन वाली फ्लो शीट है सेम है जैसे कि सिंगल एब्जॉर्प्शन वाली फ्लो शीट है। बस इसमें कन्वर्टर्स में हम 2 दफा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और इस फ्लो शीट में हम 1 दफा एब्जॉर्प्शन करते हैं आफ्टर बेड नंबर 4। ड्यूल एब्जॉर्प्शन में बेसिकली जब पहले बेड के साथ बाद we take out the reactor species, we cool them down to this heat exchanger, we introduce them onto the bed number 2. After bed number 2, through this line, we again take out the reactor species, we cool them down in this heat exchanger, and we introduce them onto the bed number 3 through this line. After bed number 3, through this line, we take out the process stream or reactor species. We cool them down in this heat exchanger, another heat exchanger, and then in this absorbing tower, we remove SO3. SO3 here is converted into sulfuric acid and unreacted SO2 and O2. They leave the tower from the top, and following these lines, they are reintroduced onto the bed number 4. बेड नंबर 4 में वो फिर रिएक्शन करते हैं, SO3 बनती है। Then after bed number 4, we take out the product stream to this line and we reintroduce this product stream into this tower after cooling. This tower is final absorbing tower. So in dual absorption, basically we perform absorption twice after bed number 3 and bed number 4. And in single absorption process, we only perform absorption once. Any question? ये क्लास कोई क्वेश्चन है? नो सर। सेप्टिक पर दोबारा बता दें। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट कर दी। सर जो बेड नंबर 3 के बाद आप दोबारा एब्जॉर्प्शन बता रहे हैं, प्लीज एक बार दोबारा बता दें। अच्छा, ट्राई टू फॉलो द लाइंस। बेड नंबर 1 के बाद कूलिंग है। बेड नंबर 1 के बाद हम इस स्टीम को बाहर निकालते हैं, रिएक्टर स्पीशीज स्टीम को कूल करते हैं और बेड नंबर 2 पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो डैश्ड लाइंस है ये हर बेड का एक सेक्शन को डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन बेड नंबर 1 है। डैश्ड लाइन से पहले हम स्टीम को रिएक्टर स्पीशीज को बाहर निकालते हैं, कूल करते हैं और डैश लाइन के बाद सेकंड कैटालिटिक बेड पे हम इस स्टीम को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बेड नंबर 2 के बाद हम स्टीम रिएक्टर स्पीशीज को निकालते हैं, कूल करते हैं और उसको बेड नंबर 3 पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं डैश लाइन के बाद। बेड नंबर 3 के बाद हम प्रोडक्ट स्ट्रीम को निकालते हैं, रिएक्टर स्पीशीज को इस लाइन को फॉलो करते रहते हैं, कूल करते हैं, एक सेकेंडरी इकोनोमाइजर में कूल करते हैं और इस एब्जॉर्बिंग टावर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस एब्जॉर्बिंग टावर में हम SO3 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अनरिएक्टेड SO2 और O2 एब्जॉर्बिंग टावर के टॉप से निकलती है और इस हीट एक्सचेंजर से पास होती हुई वो बेड नंबर 4 पे इंट्रोड्यूस होती है। बेड नंबर 4 पे वो रिएक्शन करती है
और रिएक्शन के बाद आफ्टर बेड नंबर 4 हम बॉटम से स्टीम निकालते हैं और सेकंड एब्जॉर्बिंग टॉवर में यहाँ पर हीट एक्सचेंजर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें जो रिमेनिंग SO3 होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन? सर ये एसिड कूलर्स क्या हैं? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर ये देखिए ना, ये आखिर में बिल्कुल लास्ट में दो तरफ एसिड कूलर्स लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? जो इन दो टैंक्स में एसिड और एसिड इन दो टैंक से सर्कुलेट हो रहा है या बेसिकली प्लांट के डिफरेंट सेक्शन में जा रहा होता है। तो एसिड को क्योंकि ये वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं तो उनको लिक्विड स्टेट में रखने के लिए या अगर उनका टेम्परेचर हाई हो गया तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए एक कूलिंग हीट एक्सचेंजर में से पास करें ताकि कूल्ड रहे और लिक्विड स्टेट में। थैंक यू सर। जी कोई और सवाल? क्वेश्चन? No, sir. Okay, the next acid is being shared. Yes, sir. The next acid is hydrochloric acid HCl. So it is also known as muriatic acid, and usually in market it is available in 36.5 or 37% concentrated form. Its main uses are in steel pickling, in manufacturing of methyl chloride, vinyl chloride, in pharmaceutical products, and in some food products manufacturing as well. So these are the main uses or application of HCl. These are different processes following which we can form HCl. So first one is the chlorination of aromatic and aliphatic hydrocarbons. We basically, like if we have methane and chlorinate it, we will get methyl chloride and HCl. Then we will chlorinate methyl chloride, again we will get HCl. And ethyl chloride we will get, and along with it HCl. And if we further chlorinate ethyl chloride, we will get vinyl chloride and HCl. And if we further chlorinate vinyl chloride, we will get carbon tetrachloride and HCl. Chlorination of aromatic and aliphatic hydrocarbons. From salt and sulfuric acid, so we can make any salt like sodium chloride react with sulfuric acid to form HCl. Through combustion of hydrogen and chlorine gases, H2 plus Cl2, they will combine and form HCl vapor forming. And there is an operation which is Hargreaves operation, and it is also based on the reaction of salt, SO2 and O2 gases. As a result, we will get HCl. So these are different options through which we can form HCl. Here I will discuss the third one, which is the combustion of hydrogen and chlorine gas. So this is how basically on the left side we have the furnace section in which
H2 and Cl2 will be combusted. And on the right side, we have the absorber, or the absorption section, in which HCl will be absorbed in water to form, HCl vapors will be absorbed in water to form HCl in a liquid state. So let's see first the furnace section. So through these 2 points, we introduce chlorine and hydrogen gas into the furnace. Chlorine gas goes through this line, while H2 gas goes through this line. In furnace, combustion will take place. So as we all know that combustion reaction requires high temperature and pressure. So that means we will be handling hydrogen and chlorine gases at very high temperature and pressure along with HCl vapors. For a system which has gases at high temperature or pressure, it becomes very sensitive and unsafe. And in order to ensure the safe operation of such system, we have to install a safety or a control system onto this system. क्योंकि इसमें गैसेज हैं, कम्बस्शन है जो कि हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होना है, सिस्टम बहुत सेंसिटिव और अनसेफ है. इसको सेफ बनाने के लिए हमें सिस्टम पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या कंट्रोल सिस्टम्स को ऐड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है. So this whole thing basically is related to the safety protocol or control. Okay? Like we have pressure indicator controller on chlorine gas. Name is with hydrogen gas. Flow indicator controller on H2 as well as on hydrogen gas, and both of them are also integrated with each other, right? And both the gas streams, they are also connected to a central safety shutdown system. Now, the safety shutdown system is connected with these burners. Basically, these burners will provide the fire to the reactants H2 and Cl2. ये burners जो हैं ये fire provide करेंगे H2 Cl2 को, जिससे उनकी combustion होगी और वो react करेंगे. And the same safety system is also connected with the output stream, which contains HCl vapor through these lines. Since, as I already told you, it's a gaseous system at high pressure and temperature, it is very sensitive and unsafe. That is why to have safe operation, we have to apply safety protocols and control system onto the furnace of this process. So generally H2 and Cl2 will go into the furnace, they will be combusted. As a result, HCl gas will be formed. Initially we cool down HCl gas with the circulation of cooling water in the upper section of the furnace through these lines. Through this line, cooling water will go into the furnace. It will exchange the heat with HCl vapors, and then it will leave the furnace through this line. And then the HCl vapor raises in the furnace, and then they go out of the furnace following this line. So other than the safety shutdown system, we have two more safety checks. One check is in the form of Diabond bursting disc, and the other check is in the form of blow down line. Okay. This is the first check. So just assume that the operation goes into the unsafe region. We are unable to control the pressure and temperature in the furnace. So first step will be that we will shut off the input flow rate of chlorine and H2. अज्यूम करें कि हम फर्नेस के टेम्परेचर प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो जो पहला चेक होगा वो ये होगा कि हम क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के फ्लो रेट्स को क्लोज करेंगे, शट इट करेंगे, शट ऑफ करेंगे. जब हम
close कर देंगे the flow of chlorine and hydrogen, that means no more reactant will go into the furnace. There will be no reaction. As a result, there will be no formation of HCl. So as a result, we might be able to uh, get the control over the furnace again. जब हम रिएक्टर का फ्लो रेट ही रोक देंगे, उससे क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो HCl नहीं बनेगा। तो इसमें बहुत बड़ा चांस है कि जो सिस्टम का प्रेशर टेम्परेचर है वो वापस नॉर्मल वैल्यूज की तरफ आना शुरू हो जाए। बट अगेन इमेजिन दैट यस वी हैव shut off the flow rate of the reactants, but still we are unable to control the temperature and pressure of the furnace. So in that emergent case, we have installed a Diabond bursting disc. So this disc basically is also known as a sacrificial valve. It is made of a flexible material. Like if we fill a balloon with air, so we know that the surface of the balloon or the material of which the balloon is made of, it's very flexible up to a limit. After that limit, it will blast, it will burst. Same principle is here in case of Diabond bursting. It can sustain a certain pressure value. So the increase in pressure within the furnace, it will be sustained or it will be bear out by this disc. And again, if the pressure goes beyond the limit of this bursting disc, तो उससे क्या होगा? The disc will burst, it will blast, and since जब disc blast हो जाएगी, burst कर जाएगी, तो it will create an opening through which the material present within the furnace through this line will go into the environment. तो ये बर्स्टिंग डिस्क है जिसको सैक्रिफिशियल वाल्व भी कहते हैं, और ये फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी होती है और वो एक खास प्रेशर को सस्टेन करती है वैल्यू तक। उसके बाद ये बर्स्ट कर जाती है बलून के केस में, तक आप उसमें गैस फिल करते रहें, वो फिल होता रहता है, फूलता जाता है। फिर एक पॉइंट आएगा जब उस मटेरियल की लिमिट से ज्यादा आप उसमें गैस फिल करते हैं तो वो बर्स्ट कर जाता है। सेम यहाँ पे जब सिस्टम में प्रेशर बिल्ड होगा, ये बर्स्टिंग डिस्क उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगी और सिस्टम में प्रेशर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी। तो वो प्रेशर इसकी अपनी लिमिट से बढ़ जाएगा तो ये बर्स्ट कर देती है। जैसे बर्स्ट करती है, ब्लास्ट करती है, ओपनिंग क्रिएट होती है और उस ओपनिंग से मटेरियल जो फर्नेस के अंदर होता है वो फर्नेस से बाहर चला जाता है। Yes, we have closed down the input flow rates. The Diabond disc has also bursted. Still, we are unable to control the pressure and temperature within the furnace. Then we will open this valve, low down line. And what this valve will do, it will allow all the material present in the furnace to go directly into the environment. हमने फ्लो रेट्स भी लोग भी हैं, डिस्क भी बस्ट कर दी है, फिर भी प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं कि फिर इस ब्लो डाउन लाइन पे वाल्व को ओपन करते हैं, तो जो भी मटेरियल सिस्टम के अंदर होता है, जितनी भी गैसेस होती हैं, वो सारी डायरेक्टली इन्वायरमेंट में, इसमें हम सिस्टम को बचाने में कामयाब हो, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड टू मच मनी ऑन दिस फर्नेस and we cannot afford any kind of damage to this furnace, or it will cost a lot. So that is why, in order to have safe operation, we have installed safety protocols and control system on this furnace. So any question till now? सर ये पायलट साइट के Sorry? एक स्मॉल बर्नर होता है, हम उसको लाइट करते हैं। उसके बाद एक मेन बर्नर होता है, और मेन बर्नर जो है वो फ्लेम इस पायलट बर्नर से लेता है। जैसा कि गीजर्स में होता है, एक पायलट बर्नर होता है, एक मेन बर्नर। तो हम पायलट बर्नर को ऑन करते हैं, जब हम मेन बर्नर में गैस को ऑन करते हैं तो ये फ्लेम जो है वो पायलट बर्नर। सर जो हमारे पास Yes. देखिए हम HCl
एक्सक्यूज मी सर। ये पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। सर देखिए, हम HCl के अंदर हमारे पास जो दोनों गैसेज हैं, क्लोरीन भी और HCl वेपर्स भी, ये दोनों ही हमारे लिए ख़तरनाक है ना। तो अगर हम इन्हें ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो क्लोरीन भी पॉइजनस है और HCl भी आपको ये हार्म कर सकती है। तो इस तरह सेफ्टी तो नहीं हम फॉलो की ना हमने, अगर हम उसे सबको एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पर यहाँ पे जो सेफ्टी है ना, वो सेफ्टी लगी हुई है सिस्टम पे, और सिस्टम पे सेफ्टी के चेक्स इतने लगाए हुए हैं कि जो जो सेटअप है वो डिस्ट्रॉय ना हो। क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, सिर्फ H2 और Cl2 नहीं जाएंगे इन्वायरमेंट में, उसमें मौजूद जितने भी केमिकल्स होंगे वो सारे इन्वायरमेंट में। तो यस, ये एक इन्वायरमेंटल रिस्क है, बट सिस्टम को सेफ रखने के लिए सबसे आखिरी हरबा होगा वो ये होगा कि आप ब्लो डाउन लाइन ऑन करें और सिस्टम के अंदर जो कुछ है उसको मगर जो इनिशियल चेक होंगे में मेनली जो फ्लोरेट्स है रिएक्टेंट्स के, वो बेसिकली चेक्स होंगे जो उसके सिस्टम के टेम्परेचर प्रेशर को कंट्रोल, और ये कूलिंग वाटर जो प्रोवाइड किया हुआ है, ये गैसेज हैं, गैसेज के टेम्परेचर को आप रिड्यूस करें, उनका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इनिशियली हम सिस्टम को कंट्रोल इन्हीं दो चेक से कर रहे हैं, अगर स्टिल हम अनेबल है कंट्रोल करने के लिए तो फिर हमें अपर टू ऑप्शन की तरफ मूव करना पड़ जाता है। सही सर। सर आप पायलट लाइट को एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अपने घर में जो गीजर देखे हुए हैं, यस सर। उसमें दो बर्नर होते हैं, पायलट बर्नर और मेन बर्नर। पायलट बर्नर का जो फ्लेम होता है ना, डिजाइन ऐसा हुआ होता है पायलट बर्नर की, फ्लेम थोड़ा होता है, कम फ्यूल कंबस्ट होता है। मेन बर्नर में ज्यादा होता है। जब बहुत लो हीट रिक्वायर हो, हीट ट्रांसफर रिक्वायर हो, बहुत लो एनर्जी रिक्वायर हो, या जब हमने मेन बर्नर को ऑन, सिर्फ मेन बर्नर को ऑन करना, तो तब हम पायलट बर्नर को यूज करते हैं। तो मेन एनर्जी है वो मेन बर्नर के थ्रू ही आती है। तो हम अपने गीजर्स में भी यही करते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन पढ़ने से रिलेटेड? सर FIC क्या है? FIC क्या है? FIC ये कंट्रोलर है, फ्लो इंडिकेटर कंट्रोलर, प्रेशर इंडिकेटर कंट्रोलर। ओके। और सर हमारे पास ये जो लाइट लाइंस बनी हुई है, ये मैकेनिकल फ्लो लाइंस हैं या लाइन सिग्नल लाइन है, और इसमें कैपिलरी एक्शन वाली लाइंस भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस भी, डिजिटल वाली लाइंस भी हो सकती हैं, न्यूमेटिक होती है, और और कंप्यूटर वायर्स केबल्स भी हो सकती हैं, जो कि डाटा ट्रांसफर करेगी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगी। इस सेफ्टी में ये सारी चीजें आएंगी। करंट भी होगा, न्यूमेटिक लाइंस भी होंगी, कैपिलरी लाइंस भी हो सकती हैं, और 10 डिजिट लाइन जो केबल्स है डाटा ट्रांसफर की, वो भी हो। सर ये फर्नेस के साथ चीज की है जो नीचे से ऊपर तक जा रही है। कौन सी? सर जो फर्नेस के राइट साइड के ऊपर लाइन है एक, वो ये इक्विलिब्रियम लाइन होती है, में बाजुकात
क्या कहना चाहिए, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ना एक सर्कुलेशन लाइन होती है जो बार बार उसी में सर्कुलेट करती है। कोई और क्वेश्चन? सर सर जब काम मेन बर्नर का है तो फिर पायलट बर्नर लगाने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट मेन बर्नर से काम नहीं हो सकता? कि मेन बर्नर बड़े बर्नर होंगे ना, तो उनको चलाने के लिए एक छोटा सा बर्नर रखा होता था। माचिस की तीली से तो नहीं ना हम बर्नर्स को चलाएंगे, ये घर के चूल्हे के साइज के नहीं होंगे। और सर हमारे पास सेफ्टी शटडाउन के साथ एचसीएल स्ट्रीम जो है, एचसीएल की मेन स्ट्रीम, उसके साथ ये जो बॉक्स है ये क्या है? ये बेसिकली स्टीम पे जो हमने प्रोसेस कंट्रोलर लगाया होता है। जी कोई और क्वेश्चन? सर वो पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें जो टॉवर की राइट साइड में लाइन है। इक्विलिब्रियम लाइन या रीसर्कुलेशन या रिसाइकल लाइन होती है सिस्टम में कंपोजिशन की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि भी आपने तरह के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े मास ट्रांसफर ऑपरेशन के, तो अभी इसको एक्सप्लेन करना या समझाना मुश्किल। पानी के लिए के रीसर्कुलेशन लाइन है जो कंपोजिशन या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के। सर ये ब्लो डाउन लाइन क्या होता है सर? ये जब सिस्टम में हम टेम्परेचर प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो किसी भी हर चेक पे, तो फिर फाइनल चेक ये है कि आप इस वैल्व को ओपन करें और सिस्टम के अंदर जो कुछ है उसको सिस्टम से बाहर निकालें, इससे सिस्टम बच जाएगा। और सर हमारे पास ये जो हर कंट्रोलर है उसके साथ एक छोटा ये वाला सिंबल सर FIC जिसके साथ लगा, ये वाला, इससे ऊपर, ये वाला, जी जी ये मैकेनिकल पार्ट्स हैं सिस्टम को वैल्व कहते हैं। ये डेटा लाइन है, ये कंपैरेटर है, ट्रांसफर लाइन। ये जो वो कंट्रोलर लगा हुआ है ना, कंट्रोलर सेटअप के उसके कंपोनेंट्स। ये कोई और क्वेश्चन? क्लास any other question? Questioning. So then HCl formed with HCl vapors formed in the they are introduced into the absorbing tower, absorption tower. So this line, gas represent the HCl vapor. The vapors raise up into this tower, and from the top of the tower, we introduce water. Water trickles down. It directly interacts with the upcoming or releasing HCl vapor, and it tries to absorb this water. Tries to absorb the HCl vapor. HCl vapors are converted, and that liquid is collected from the bottom in the form of strong HCl acid. ठीक है, तो HCl वेपर्स को अब्जॉर्प्शन टावर के बॉटम से और अब्जॉर्बिंग वाटर को टॉप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, वाटर फॉल करता है, वेपर्स रेज होते हैं,
वाटर जो होता है वो HCl वेपर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और लिक्विड फॉर्म में हम इस HCl जो अब्सॉर्ब हुआ है वाटर में उसको कॉलम के बॉटम से स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में रिमूव करते हैं। कूलिंग वाटर को हम कॉलम के हर सेक्शन में या वेरियस सेक्शन में इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, क्योंकि जो एसिड वाटर रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है, वो हीट इवॉल्व होती है। तो सिस्टम के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए हम वेरियस पॉइंट पे सिस्टम में कूलिंग वाटर इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, ताकि जो एब्जॉर्प्शन की हीट है उसको रिमूव करते रहें और हमारे इक्विपमेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल या डिजायर्ड रेंज में रहे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्लास कोई क्वेश्चन? सर ये जो एब्जॉर्बिंग टावर के लेफ्ट के ऊपर एक कॉलम्स है, इसके अंदर जो वेंट है उसका क्या फंक्शन है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होती है वो भी हाई प्रेशर पे होती है, तो जो फेवरेबल कंडीशन है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो अगेन अगर इस सिस्टम में हम प्रेशर कंट्रोल ना कर पाए तो ये सिस्टम बर्स्ट कर जाएगा। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक वाल्व प्रोवाइड किया होता है। अगर हम प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाते तो इस वाल्व को ओपन करते हैं, जिसको वेंट कहते हैं, और मटेरियल जितना भी सिस्टम के अंदर होता है वो इस वेंट से सिस्टम से बाहर आ जाता है, इस सिस्टम सेफ हो जाता है। यस सर, ठीक हो। कोई और क्वेश्चन? इस वाले नहीं? ओके, फिर सीआर से रिक्वेस्ट पास करने और शेयर करें। सर जी सर, एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर हमें ये पेपर में आ सकती हैं डायग्राम्स, यानी कि अगर हम आएंगे तो हम ये प्रैक्टिस। आपको डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स पेपर में ड्रॉ करने के लिए आएंगी। क्लास कोई और क्वेश्चन? सर एक और जनरल क्वेश्चन था कि ये हमारे पास जो हीट एक्सचेंजिंग स्टीम होती है वो यूटिलिटी स्टीम्स में आती है ना? आवाज बेटा थोड़ी रिस्पॉन्ड करके दोबारा पूछिएगा। सर हमारे पास जो हीट एक्सचेंजिंग स्टीम्स आती हैं, स्ट्रीम्स आती हैं, वो यूटिलिटी स्ट्रीम्स में आती हैं। हीट एक्सचेंजर में दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, एक को प्रोसेस स्ट्रीम कहते हैं, एक को यूटिलिटी स्ट्रीम कहते हैं। तो प्रोसेस स्ट्रीम होती है वो उस स्ट्रीम को कहते हैं जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और यूटिलिटी स्ट्रीम उस स्ट्रीम को कहते हैं जो प्रोसेस स्ट्रीम को अपना प्रोसेस परफॉर्म करने में हेल्प करती है। लाइक प्रोसेस स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट है कि उसको हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, यूटिलिटी स्ट्रीम उस टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। प्रोसेस स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट है कि अब उसका टेम्परेचर हो जाना चाहिए, तो यूटिलिटी स्ट्रीम उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करेगी। तो जो यूटिलिटी स्ट्रीम होती है उसका अलग से सेक्शन होता है जिसको हम यूटिलिटी सेक्शन कहते हैं प्लांट, वो वहां से आती है, और वो बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है इन द मेन प्रोसेस सेक्शन ऑफ द प्लांट। सर आप एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर दें कि आएगी ड्रॉ करने के लिए कि नहीं आएगी।
पेपर में आपको ड्रॉ करने के लिए आएगी। ओके सर, थैंक यू। अटेंडेंस मार्क होगी